Now we shall start application of UCM, vehicle along horizontal circular track. Before starting this, we shall study something which you have studied in standard 11th. That is coefficient of static friction. Now see, what is this coefficient of static friction? See, suppose this is a table. On this table I am placing a block and I am applying a force to it. I am applying a force of 1 Newton. This block will not move. Why this block is not moving? Why this block is not moving? Because one frictional force is acting on it, that is also equal to 1 Newton. Now I am increasing this force to 5 Newton. This frictional force is also becoming 5 Newton. I am making it 10 Newton. This frictional force is also becoming 10 Newton. I am making this 10.1. This is remaining 10 Newton. Now the block will just start to move. So what is happening here? The frictional force also increases as we are increasing the forward force. So this frictional force, this is the static frictional force. Static frictional force is self-adjusting. It adjusts itself to this applied force. So when I am applying force of 1 Newton, the frictional force is also becoming 1 Newton. I am going on increasing, the frictional force also goes on increasing. At a particular value, this frictional force cannot increase further. So यहाँ पर 10 न्यूटन आ गया, यहाँ भी 10 न्यूटन आ गया. अभी 10 के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया, लेकिन ये 10 से ऊपर इंक्रीज नहीं हो रहा है. इसको कहते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. सो इन दिस पर्टिकुलर केस, what is the limiting force of static friction? 10 Newton. So this self-adjusting force of static friction, it cannot increase a particular value. एक particular value से ज़्यादा increase नहीं हो सकता है, और उसको कहते हैं limiting force of static friction. Now Fs का मतलब है static frictional force, force of static friction. It is given by one formula, that is mu into n. That is mu into n. Now what is the meaning of this mu? Mu means coefficient of static friction. What is this n? N का meaning है normal reaction. Now what is this normal reaction? Say suppose I am placing a block of wood like this. इसके ऊपर force act होगा mg in downward direction, and this table will also exert force in upward direction. ये जो अपवर्ड फोर्स रहता है इसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, एंड इट इज ऑल्सो इन दिस केस इक्वल टू mg. सो दिस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स और द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू. वी शैल राइट दिस एज म्यू एस इंटू n, वेर n इज द नॉर्मल रिएक्शन. ओके, ये फॉर्मूला हमको याद रखने का है, इसका आगे एप्लीकेशन आएगा. अभी एप्लीकेशन में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं vehicle along horizontal circular track. Vehicle along horizontal circular track. Now suppose ये सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ से एक व्हीकल जा रहा है, व्हीकल यहाँ पर है. नो व्हाट इज हैपनिंग हियर? दिस व्हीकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. ये सर्कल का सेंटर है C. ये व्हीकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. अभी सर्कुलर मोशन के लिए इट नीड्स centripetal force. Who is providing the centripetal force? The friction between the tire and road. ये रोड हमारा हॉरिजॉन्टल रोड है, इट इज नॉट बैंक द रोड. बैंक द रोड क्या हम आगे पढ़ने वाले हैं. अभी सपोज इसका हमने ऐसा डायग्राम बनाया, ये है सेंटर ऑफ द सर्कल, ये है हमारा व्हीकल, ये व्हीकल जो ये पेज के अंदर जा रहा है और लेफ्ट टर्न ले रहा है, पेज के अंदर जा रहा है और लेफ्ट टर्न ले रहा है. नो व्हाट इज द डिस्टेंस? ये इसका सेंटर ऑफ मास है हमारे व्हीकल का. सेंटर ऑफ मास से कितना फोर्स नीचे एक्ट करेगा? mg. और उसका नॉर्मल रिएक्शन किधर रहेगा? ऊपर के डायरेक्शन में, यानी नॉर्मल रिएक्शन भी रहेगा इक्वल टू mg. अब यहाँ पर देखो व्हाट विल हैपन, ये सर्कुलर एक टर्न कर रहा है. ये जो हमारा व्हीकल है ये अंदर पेज के अंदर जा रहा है और लेफ्ट टर्न कर रहा है, तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा बाहर के डायरेक्शन में. बाहर के डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा
तो फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट इन इनवर्ड डायरेक्शन, इट इज इक्वल टू एफ एस। ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, लेकिन व्हीकल तो मूव हो रहा है, देन व्हाई वी आर टेकिंग दिस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स? क्योंकि आउटवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में व्हीकल मूव नहीं हो रहा है, व्हीकल जो है सामने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है। इट इज नॉट मूविंग इन इनवर्ड डायरेक्शन नॉर इन आउटवर्ड डायरेक्शन, बट if force is acting in outward direction, so the vehicle tends to move in outward direction, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा कौन से डायरेक्शन में? इनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा। हाँ, नो हियर नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू कितना आता है? नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg, और Fs इज इक्वल टू कितना आएगा? दिस Fs इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे पहले, उसमें से एक फॉर्मूला है m r ओमेगा स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r, m r ओमेगा स्क्वायर एंड m v स्क्वायर अपॉन r। हाँ, अभी Fs अपॉन n कितना आएगा? इसको अगर हमने डिवाइड किया, Fs अपॉन n अगर डिवाइड किया हमने, तो व्हाट वी गेट? Fs अपॉन n विल बी इक्वल टू r omega square upon g and it is also equal to v square upon rg। कैसा आता है? हाँ, सी Fs m r ओमेगा स्क्वायर है डिवाइड बाई mg अगर किया तो m और m कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा? r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g। और अगर इससे डिवाइड किया तो m और m कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा? v स्क्वायर अपॉन rg। नाउ फॉर ए गिवन ट्रैक रेडियस r इज कांस्टेंट। अगर एक ट्रैक दिया है, ट्रैक के लिए यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये है रेडियस। फॉर ए गिवन ट्रैक रेडियस r कांस्टेंट है, एंड फॉर ए व्हीकल mg भी कांस्टेंट है, मास ऑफ व्हीकल कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है। सो वी शैल राइट हियर r इज कांस्टेंट एंड n which is equal to mg, it is also कांस्टेंट। ये दोनों भी कांस्टेंट है। Thus as the speed v increases, the force of static friction Fs also increases। अगर समझो वेलोसिटी को अगर हमने इंक्रीज किया, वेलोसिटी अगर इंक्रीज किया हमने, ये r g n तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी इंक्रीज किया तो Fs will also increases। Therefore as v increases, Fs increases। हाँ, as v यानी कि वेलोसिटी जब इंक्रीज हो गया तो ये Fs भी इंक्रीज होगा। Thus as the speed v increases, force of static friction Fs also increases। लेकिन ये Fs का एक प्रॉब्लम है, Fs को एक अपर लिमिट है, हमने यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ा है। Fs यहाँ पर हमने देखा 10 न्यूटन से ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता है, तो Fs को एक अपर लिमिट है। हाँ, एंड वी शैल राइट इट एज Fs मैक्स। Fs मैक्स यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Fs, हाँ, इट इज इक्वल टू व्हाट? म्यूएस इंटू n, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू m। तो ये उसका अपर लिमिट है। हाँ, दिस इंपोजेस एन अपर लिमिट टू द स्पीड v, तो उससे ज्यादा हम स्पीड इंक्रीज नहीं कर सकते। उससे ज्यादा अगर स्पीड इंक्रीज किया तो क्या हो जाएगा? ये व्हीकल जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में स्लिप हो जाएगा, क्योंकि Fs एक लेवल तक इंक्रीज हो सकता है, उससे ज्यादा Fs इंक्रीज नहीं हो सकता है। Therefore, as the maximum possible speed Vs, we can write down F max upon Fs max upon n, it is equal to mu s। हाँ, Fs max upon n इक्वल टू कितना आएगा? mu s। और mu s इक्वल टू कितना आएगा? V max स्क्वायर अपॉन rg, V max स्क्वायर अपॉन rg। कैसा आ गया ये? सी mu s इज इक्वल टू कितना है? हाँ, कौन से फॉर्मूले में आया था यहाँ पर? mu s इज इक्वल टू F max अपॉन n। ये n को यहाँ पर लेफ्ट में लाया तो Fs max अपॉन n इज इक्वल टू mu s आया, लेकिन Fs max अपॉन n इक्वल टू कितना है? V स्क्वायर अपॉन rg है। हाँ, सो ये mu s इक्वल टू कितना आएगा? V max स्क्वायर अपॉन rg। सो फ्रॉम दिस वी गेट V max इज इक्वल टू हाउ मच? V max इज इक्वल टू अंडर रूट V max इज इक्वल टू V max स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? mu s इंटू rg, और वी गेट V max इज इक्वल टू अंडर रूट mu s इंटू rg। ये फॉर्मूला को बॉक्स कर डालो, ये फॉर्मूला याद रखने का। सो अगर एक कर्व्ड रोड है तो अगर व्हीकल को टर्न करना है
तो मैक्सिमम कितना स्पीड से टर्न कर सकता है? द मैक्सिमम स्पीड इज अंडर रूट म्यू एस आर जी। हाँ, सी नेक्स्ट एप्लीकेशन वी शैल सी वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं। हाँ, मोस्टली तुमने वहाँ पर क्या कहते हैं उसे, कोई अगर मेले में, उर्स में, वहाँ पर देखा रहेगा तुमने मौत का कुआं। हाँ, और वेल ऑफ डेथ अगर नहीं देखा रहेगा तो यूट्यूब पे टाइप करो वेल ऑफ डेथ और तुमको दिखेगा। वेल ऑफ डेथ में एक बहुत बड़ा कुआं रहता है, लकड़ी का बना हुआ रहता है, और इसके अंदर एक टू व्हीलर या फोर व्हीलर, हाँ टू व्हीलर भी ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है, फोर व्हीलर भी परफॉर्म करता है। हाँ, तो अंदर जो डॉटेड लाइन दिख रहा है, हाँ यहाँ पर एक टू व्हीलर घूमता है या कोई व्हीकल घूमता है, और ये व्हीकल जो है नीचे नहीं गिरता है। हाँ, व्हीकल का जो रहता है ये वॉल के ऊपर, ये कुएं के वॉल के ऊपर व्हीकल राउंड घूमता है। तो यूट्यूब में तुम देखेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, या तुमने देखा होगा इसके पहले। हाँ, अभी ये जो व्हीकल है इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं? हाँ, एक फोर्स है ये नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सर्कल के सेंटर के तरफ एक्ट करता है। हाँ, और नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है? एम आर ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। दूसरा फोर्स है एम जी, इसका वेट जो एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हाँ, और तीसरा फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, वो एक्ट हो रहा है ऊपर के डायरेक्शन में। क्यों? अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसको ये वॉल के तरफ पुश करता है। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको वॉल के तरफ पुश करता है। अब इसका वेट एम जी नीचे की तरफ उसको खींच रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, एफ एस ऊपर के डायरेक्शन में। सो एफ एस और एम जी दोनों इक्वल रहेगा। हाँ, सो दैट द मोटरसाइकिलिस्ट और जो व्हीकल चलाने वाला है वो नीचे नहीं गिरेगा। अभी ये जो एफ एस रहता है, हाँ इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। हाँ, हमको मालूम है कोएफिशिएंट जो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो हमेशा म्यू एस इंटू एन से कम रहता है या इक्वल टू रहता है, इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। हाँ, अभी देयरफॉर एफ एस इक्वल टू एम जी है, लेकिन ये एम जी इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस, एन के जगह हमने लिख दिया एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अभी हमने क्या किया, m और m दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, वी गेट g लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। साइड चेंज किया हमने, r को लेफ्ट में लाया तो आर जी हो गया, और म्यू एस को लेफ्ट में लाया तो क्या हो गया, डिनोमिनेटर में चले गया। सो आर जी अपॉन म्यू एस इज लेस देन और इक्वल टू वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू एस। देयरफॉर V minimum is equal to अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस। हाँ, दिख रहा है इसमें V स्क्वायर इससे ज्यादा है, यानी कि उसका कम से कम वैल्यू कितना रहेगा, आर जी अपॉन म्यू एस। सो V minimum is equal to अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस। So this is the minimum speed of this vehicle, so that it does not fall down or it goes around this what we say walls of this well without falling down. ओके, सो ये फॉर्मूला याद रखने का, वेल ऑफ डेथ का फॉर्मूला है V मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस। हाँ, सी नेक्स्ट यू टेक बैंकिंग ऑफ रोड। ये बैंकिंग का मीनिंग क्या है? बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब जो है, रोड को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रेस करते हैं। अभी रोड अंदर की तरफ जा रहा है, पेज के अंदर की तरफ जा रहा है और लेफ्ट टर्न ले रहा है, तो रोड का जो आउटर एड्ज है उसको हम थोड़ा लिफ्ट कर देते हैं, आउटर एड्ज को थोड़ा लिफ्ट कर देते हैं हम। सो ये जो व्हीकल है हमारा, ये पेज के अंदर जाकर लेफ्ट टर्न ले रहा है, और ये रोड को हमने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल से थोड़ा रेस किया, इसको कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। अगर तुम हाईवे से ट्रैवल करते हो तो तुमको रास्ते में दिखेगा, घाट वगैरह एरिया में दिखेगा, रोड जो रहता है हॉरिजॉन्टल नहीं रहता है, रोड का एक एज ऊपर रहता है, एक एज नीचे रहता है, उसको कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। अब व्हाट इज द नीड ऑफ दिस बैंकिंग ऑफ रोड? बैंकिंग ऑफ रोड की जरूरत क्या है? इसके पहले हमने पढ़ा व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक हमने पढ़ा। जब व्हीकल जब टर्न ले रहा है, हाँ उस समय हमने देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करता है। लेकिन ये जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, इसके ऊपर से हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, Vmax इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस इंटू आर जी। Vmax इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस इंटू आर जी। सो मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल मिला हमको। लेकिन ये जो म्यू एस है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका वैल्यू फिक्स नहीं रहता है। हाँ, अगर बारिश का दिन है तो इसका वैल्यू कम हो जाता है। हाँ, अगर रोड के ऊपर अगर ऑयल गिर गया है तो
ये फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा। और स्पीड में अगर आप गाड़ी को टर्न कर रहे हो तो व्हाट विल हैपन, ये गाड़ी जो है बाहर की तरफ थ्रो हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाएगा व्हेन कंपेयर टू दिस एफएस। हाँ, एक्चुअली आइडियल कंडीशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एफएस इक्वल होना चाहिए, तो व्हीकल जो रहता है बाहर की तरफ फेंका जाएगा। अब ये प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, हाँ, ये म्यूएस जो है, म्यूएस इज अनसर्टेन, हाँ, हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड करते हैं हम। हाँ, सिर्फ बैंकिंग ऑफ रोड में सपोज ये हमारा व्हीकल है, ये व्हीकल हमारा पेज के अंदर जा रहा है और लेफ्ट टर्न ले रहा है, हमने यहाँ पर राइट एज को ऊपर उठाया है, ये व्हीकल जो है हमारा ये अंदर जा रहा है और लेफ्ट टर्न ले रहा है। ओके, अभी व्हीकल के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? सबसे पहले व्हीकल का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके, एंड दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ये हमारा यन, ये यन को हमने दो कंपोनेंट में ब्रेक किया। ये एंगल थीटा है, तो बाई ज्योमेट्री ये एंगल भी थीटा आता है। हाँ, ज्योमेट्री घर में अप्लाई करके देखने का। ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा आएगा। हाँ, ये 90 माइनस थीटा अगर आ गया तो ये एंगल थीटा आएगा, आगे ने 90 माइनस थीटा आएगा, ये थीटा, तो ज्योमेट्री है। हाँ, वी शैल नॉट गो इन डेप्थ। सो एंगल थीटा आ गया। अभी कंपोनेंट में यन को हम दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। एक है वर्टिकल कंपोनेंट, इट विल बिकम यन कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा यन साइन थीटा। हाँ, इसमें एक ट्रिक याद रखने का, सपोज कोई भी वेक्टर अगर दिया है, कोई अगर वेक्टर दिया है, ये एंगल अगर थीटा है, ये वेक्टर है सपोज आर, तो इसको दो कंपोनेंट में हमको ब्रेक करने का है। तो थीटा के बाजू का जो कंपोनेंट रहता है वो हमेशा आर कॉस थीटा रहता है, और थीटा के ऑपोजिट का जो कंपोनेंट रहेगा इट विल बी आर साइन थीटा। हाँ, ये ट्रिक याद रखने का, थीटा का बाजू वाला कॉस, हाँ, और जो दूसरा साइड रहता है वो रहता है साइन। हाँ, सो हियर व्हाट यू हैव डन, हमने इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, यन कॉस थीटा और यन साइन थीटा। अब ये यन कॉस थीटा किसको बैलेंस करता है? mg को। हाँ, वेट mg को बैलेंस करता है। यन कॉस थीटा हमने यहाँ पर लिख दिया यन कॉस थीटा इक्वल टू mg। ये जो यन साइन थीटा है, ये दिख रहा है, ये सर्कल के सेंटर के तरफ एक्ट करता है। हाँ, ये जो रोड जो टर्न ले रहा है, इसका जो सर्कल है उसके सेंटर के तरफ पे एक्ट कर रहा है। सो इट प्रोवाइड्स दिस यन साइन थीटा प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mv स्क्वायर अपॉन r। सो यन साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, दोनों को डिवाइड किया हमने। हाँ, यन साइन थीटा अपॉन यन कॉस थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r डिवाइडेड बाई mg। m और m कैंसिल होएगा, n और n कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज हाउ मच? tan थीटा। ओके, सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। नाउ सी व्हाट इज द मोस्ट सेफ स्पीड। हाँ, मोस्ट सेफ स्पीड कितना है? हाँ, v स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? tan थीटा इंटू rg, और v इक्वल टू अंडर रूट rg tan थीटा। हाँ, ये जो है मोस्ट सेफ स्पीड से व्हीकल हमारा टर्न ले सकता है। दूसरा है बैंकिंग एंगल, ये थीटा। थीटा कैसा फाइंड करने का? सी tan थीटा इज v स्क्वायर अपॉन rg, सो थीटा इज tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन rg। सो स्पीड लिमिट, हाँ, सो अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने हमारे फॉर्मूला में हमने म्यू को कंसिडर नहीं किया है। ये रोड का फ्रिक्शन है 0, अगर 0 फ्रिक्शन है तो भी हमारा गाड़ी टर्न ले सकता है। गाड़ी का स्पीड कितना होना चाहिए? अंडर रूट rg tan थीटा। अब स्पीड लिमिट क्या है? अगर व्हीकल एग्जैक्टली इसी स्पीड से अगर चल रहा है हमारा, तो इसके जो फोर्सेस है वेट mg, हाँ, यन कॉस थीटा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो जाता है। नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर है, हाँ, और सेंट्रीपिटल फोर्स इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर देता है। सो व्हाट विल हैपन, हमारा व्हीकल जो है एक सेफ टर्न ले सकता है। लेकिन, हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगा? मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड हमको फाइंड करने का है। हाँ, सी स्पीड अगर एक लिमिट से अगर ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? हमारा व्हीकल बाहर की तरफ चले जाएगा, थ्रो हो जाएगा। स्पीड अगर कम हो गया तो इसमें देखो ये इंक्लाइंड प्लेन है, व्हीकल हमारा नीचे की तरफ, जैसे हमने यहाँ पर देखा था, वेल ऑफ डेथ में हमने देखा था, स्पीड कम हो तो क्या होगा? गाड़ी नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है, एक इसमें एक मिनिमम स्पीड भी आता है और एक मैक्सिमम स्पीड भी आता है। हाँ, मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए व्हीकल का, मैक्सिमम स्पीड कितना होना चाहिए? हाँ, मोस्ट सेफ स्पीड वी हैव गॉट अंडर रूट rg tan थीटा। हाँ, सो आगे अभी हम पढ़ेंगे व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड एंड व्हाट शुड बी द मैक्सिमम स्पीड।
हाँ, see, we have seen that the most safe speed is Vs is equal to under root Rg tan theta. But if the speed is less than under root Rg tan theta, what will happen? If the speed is less than under root Rg tan theta, then centripetal force mv square upon r is less than n sin theta. See, सेंटर की तरफ फोर्स एक्ट होता है, सेंट्रिपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r, लेकिन v1 इज स्मॉलर देन अंडर रूट rg tan थीटा, तो सेंट्रिपिटल फोर्स इज लेस देन n sin थीटा. So mv1 square upon r is less than n sin theta. Now what will happen? सेंट्रिपिटल फोर्स कम है लेकिन n sin थीटा ज्यादा है, तो व्हीकल क्या होगा, नीचे की तरफ स्लिप होगा. व्हीकल नीचे की तरफ स्लिप होगा तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा. करेक्ट है? इसका स्पीड कम हो तो व्हीकल नीचे आएगा और Fs ऊपर चले जाएगा. Now Fs is directed along inclination upward direction. Now what are the equation we are getting here? See, यह नॉर्मल रिएक्शन n, इसको दो कंपोनेंट में स्प्लिट किया, n sin थीटा, n cos थीटा, वर्टिकली अपवर्ड. फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन along the inclination, हाँ, we can split it into two component. This is Fs cos थीटा, यह Fs sin थीटा. हाँ, now what is this mg? mg को कौन बैलेंस करता है? mg को बैलेंस करता है n cos थीटा प्लस Fs sin थीटा. से पहला इक्वेशन Fs sin थीटा प्लस n cos थीटा, इट इज इक्वल टू mg. Next is mv1 square upon r. See, centripetal force mv1 square upon r, it is equal to n sin theta minus राइट साइड में और एक फोर्स कौन है, Fs cos theta. समझ में है? mv1 square upon r is n sin theta minus Fs cos theta. और इस दोनों को डिवाइड किया हमने. हाँ, what we get on dividing? mv1 square upon r divided by mg is n sin theta minus Fs cos theta upon Fs sin theta plus n cos theta. Divide both numerator denominator by cos theta. ये डेरिवेशन टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, ये हमने एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐड किया है. दोनों को डिवाइड बाय cos थीटा किया तो n sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या आएगा, n tan थीटा. Fs cos थीटा अपॉन cos थीटा क्या आएगा, माइनस Fs. Fs sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या आएगा, Fs tan थीटा. n cos थीटा अपॉन cos थीटा कैंसिल n. दोनों को डिवाइड बाय n करो तो ये n कैंसिल हो जाएगा. हियर वी गेट tan थीटा माइनस Fs अपॉन n, यहाँ पर आएगा tan थीटा Fs अपॉन n tan थीटा, n और n कैंसिल हो जाएगा, वी गेट 1. हाँ, लेकिन अभी Rg को राइट साइड भेज दिया तो Rg यहाँ पर आ गया है. व्हाट इज Fs अपॉन n इक्वल टू, Fs अपॉन n इज इक्वल टू म्यू s. सो वी आर गेटिंग v1 इज इक्वल टू अंडर रूट Rg tan थीटा माइनस म्यू s. यहाँ पर 1 को लेफ्ट में लिख दिया, Fs अपॉन n tan थीटा, इट विल बिकम म्यू s इंटू tan थीटा. सो दिस इज द मिनिमम स्पीड वी आर गेटिंग. बैंक रोड के ऊपर मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए, v1 मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट Rg tan थीटा माइनस म्यू s अपॉन 1 प्लस म्यू s tan थीटा. ये फॉर्मूला बाय हार्ट करके लेना. नेक्स्ट we shall see no upper speed limit. Upper speed limit में v2 is greater than under root Rg tan theta. Now what will happen? mv square upon r is greater than n sin theta, यानी कि सेंट्रिपिटल फोर्स हो गया ज्यादा, n sin theta हो गया कम. तो व्हीकल क्या हो जाएगा, व्हीकल ऊपर की तरफ स्लिप होगा. क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ गया. व्हीकल जब ऊपर की तरफ स्लिप हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. फ्रिक्शनल फोर्स के दो कंपोनेंट Fs cos थीटा, यह Fs sin थीटा. नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट n sin थीटा, n cos थीटा. नाउ सी हियर Fs इज डायरेक्टेड अलोंग इंक्लिनेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब यहाँ पर आएगा mg इज इक्वल टू n cos थीटा माइनस Fs sin थीटा. mg इज इक्वल टू n cos थीटा ऊपर है और Fs sin थीटा नीचे है. सो mg इज इक्वल टू n cos थीटा माइनस Fs sin थीटा. And mv2 square upon r is equal to how much we get, n sin theta plus Fs cos theta. See, centripetal force के दोनों भी प्रोवाइड करते, n sin theta, Fs cos theta, both are providing the required centripetal force. So we get mv2 square upon r equal to n sin theta plus Fs cos theta. जैसा यहाँ सोल्व किया वैसे यहाँ पर सोल्व करने का, we get v2 max equal to under root Rg tan थीटा प्लस म्यू s अपॉन 1 माइनस म्यू s tan थीटा. दोनों फॉर्मूला याद रखना इजी है. मिनिमम वेलोसिटी के लिए Rg
tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, और वी मैक्सिमम के लिए अंडर आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस, ज्यादा के लिए ऊपर प्लस नीचे माइनस, और मिनिमम के लिए ऊपर माइनस नीचे प्लस. नाउ सी हियर व्हाट विल हैपन इफ म्यू एस इज इक्वल टू cot थीटा, देन वी मैक्स म्यू एस cot थीटा अगर हो गया तो cot थीटा इंटू tan थीटा 1 माइनस 1 0, एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी. तो वी मैक्स कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी. बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू एक्स कितना हो सकता है? 1. म्यू एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1, सो cot थीटा इक्वल टू 1 मीन्स थीटा कितना आएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 डिग्री. अगर थीटा 45 डिग्री से अगर ज्यादा या इक्वल है तो वी मैक्स इन्फिनिटी हो जाएगा, मीन्स अपर स्पीड लिमिट खत्म हो जाएगा. इफ थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री देन देयर इज नो अपर स्पीड लिमिट, इट बिकम्स इन्फिनिटी. एंड इफ म्यू एस इज इक्वल टू 0, म्यू एस इक्वल टू 0 कब रहेगा? फ्रिक्शनल फोर्स अगर 0 हो गया तो. फ्रिक्शनल फोर्स 0 हो गया, नो हियर म्यू एस को अगर 0 डाल दिया तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0, मीन्स वी गेट अंडर रूट आर जी tan थीटा. वी आर गेटिंग द सेम फॉर्मूला जो हमने अनबैंक्ड रोड के लिए हमने प्रिपेयर किया, सॉरी विदाउट फ्रिक्शनल फोर्स के लिए हमने प्रिपेयर किया था. पिछला जो फॉर्मूला था वी आर गेटिंग दैट फॉर्मूला, v इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा. सो अगर फ्रिक्शनल फोर्स 0 है तो सेफ स्पीड आएगा अंडर रूट आर जी tan थीटा. फ्रिक्शनल फोर्स अगर 0 नहीं है तो मिनिमम स्पीड आएगा अंडर रूट आर जी tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, एंड मैक्सिमम स्पीड वी गेट आर जी अंडर रूट tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा. हाँ, सो ये टेक्स्ट बुक बेस्ड हमने सोल्व किया है, सोल्व करके ले लो, वेरी सिंपल.